Assalamu alaikum students. Illustration number 1, Journal entries. The balance sheet of Sujata and Purnima, whose share profits equally, was as follow. Balance sheet as on 31st March 2018. On liability side, capital, Sujata 1 lakh, Purnima 1 lakh 40,000. Creditors 34,000, bills payable 26,000. Now asset side, land and building 60,000, plant and machinery 70,000, furniture 24,000, sundry debtors 26,000, stock 40,000, cash 80,000, and the balance sheet total is 3 lakh 3 lakh. On 1st April 2018, Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profit on the following terms and condition. Number 1, goodwill is valued rupees 2 lakh. Aparna is bring her share of goodwill in cash. goodwill की वैल्यू कितनी है? 2 lakhs. और अपर्णा क्या कर रही है? उसका शेयर ऑफ गुडविल ला रही है. सो उसका शेयर कितना है? 1/5. सो 2 lakh डिवाइडेड बाय 5th, तो कितना आएगा? 40,000 ईच. सो अपर्ना's share of goodwill is rupees 40,000. Next, B. Aparna is to bring rupees 1 lakh as capital. और क्या कर रही है अपर्णा? 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रही है. C. A provision of 10% is to be created on sundry debtors. मीन्स वॉट? यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? RDD निकाल रहे हैं. प्रोविजन मीन्स RDD. सो 10% प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स. डेटर्स वैल्यू इज 26,000. 26,000 10% कितना होता है? 2,600. नेक्स्ट, D. लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 80,000. लिसन स्टूडेंट्स, ऑन ओपनिंग बैलेंस शीट the land and building value is rupees 60,000, and on adjustment they say the values rupees 80,000. It's an appreciation or depreciation, so it's an appreciation value. कितने से appreciation हुआ? 20,000 से. Now E. stock, plant and machinery is to be reduced by 20%. means what? stock और plant and machinery की value 20% से reduce हुई. In other words, we can say it's a depreciation. So first, stock value rupees 40,000. 40,000 का 20% कितना होगा? 8,000. Same as machinery value rupees 70,000, and 70,000 का 20% कितना होगा? 14,000. Draft the journal entries to record the above arrangement and give the opening balance sheet of the new firm. मीन्स वॉट? अभी यहाँ पे हमको जो है जनरल एंट्रीज पास करने हैं, और साथ ही साथ आफ्टर जॉइनिंग ऑफ न्यू पार्टनर हमें उनकी बैलेंस शीट बनाना है. क्लियर है? अब मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हम जनरल एंट्रीज कौन सी पास करेंगे. सो लिसन स्टूडेंट्स, जो भी एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं जनरल एंट्रीज, हम वो एडजस्टमेंट की ही पास करते हैं. बस लास्ट एंट्री जो हमें प्रॉफिट आइदर लॉस फाइंड आउट करना होता है, वो हम थ्रू वर्किंग नोट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट पास करते हैं. क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू द एक्चुअल जनरल. First heading in the book of Sujata, Purnima and Aparna, journal entries. Number first, 2018 April 1. First adjustment क्या है? Aparna joined the firm as a third partner for 1/5 share of future profit. Okay? Right? मीन्स अपर्णा जो है कंपनी में एज अ थर्ड पार्टनर ज्वाइन हुई है, जिसका शेयर है 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट.
and what she bring a share of goodwill and rupees 1 lakh as a capital, and both the amount bring in a form of cash. ये दोनों चीज़ें उसने कैश के फॉर्म में लाई है, राइट. सो फर्स्ट जनरल विल बी लाइक कैश अकाउंट डेबिट 1,40,000 to Aparna's capital account 1 lakh, to goodwill account 40,000. Clear? Again, cash account debit 1,40,000 to Aparna's capital account 1 lakh, to goodwill account 40,000. Being cash and goodwill bought by Aparna. Being cash and goodwill bought by Aparna. Clear? Next, अब यहाँ पे कैश आया, गुडविल आया. सो गुडविल इज एन ओल्ड पार्टनर्स गुडविल, राइट. ये ओल्ड पार्टनर का गुडविल है जो न्यू पार्टनर बिजनेस में लेके आ रहा है, बराबर ना. का ये पूरा का गुडविल जो है पूरा का पूरा अर्न ओल्ड पार्टनर ने किए हैं. सो गुडविल किसका हुआ? ओल्ड पार्टनर का हुआ. सो गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल. उनका रेशो क्या है? इक्वल है. ओके. सो अगेन इंटरव्यू लाइक गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू सुजाता's कैपिटल अकाउंट 20,000 टू पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट 20,000. क्लियर है? अगेन गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 बिकॉज अपर्णा ने 40,000 रुपीज़ गुडविल लाई थी, एंड ये गुडविल दोनों का पूरा ओल्ड पार्टनर्स का था. सो द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल. सो गुडविल अकाउंट डेबिट 40,000 टू सुजाता कैपिटल अकाउंट 20,000 टू पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट 20,000. बीइंग द गुड अमाउंट ऑफ गुडविल distributed amongst the partner in their profit sharing ratio. Being the amount of goodwill distributed amongst the partner in their profit sharing ratio. Next, again on April 1, because dates हमें सेम ही रहेंगी. 1 अप्रैल को ही अपर्णा का एडमिशन हो रहा है. अभी क्या है? फर्स्ट we see the C adjustment 10% provision created on RDD, and E stock and machine reduced by 20%, and both the adjustment done in revaluation account. Why? Because all three adjustment is a loss for the company. प्रॉफिट कम होना, RDD क्रिएट होना, राइट, स्टॉक की वैल्यू कम होना, मशीनरी की वैल्यू कम होना, दीज ऑल आर द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. सो एक्सपेंसेस और लॉसेस हम कहाँ लिखते हैं? ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो इंटर विल बी लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,600 टू RDD अकाउंट 2,600 टू स्टॉक अकाउंट 8,000 to plant and machinery account 14,000. Being decrease in value of debtor, stock, plant and machinery recorded in revaluation account. Again वापस एक बार सुन लो. revaluation account debit 24,600 to RDD account 2,600 to stock account 8,000 to plant and machinery account 14,000. Being decrease in the value of debtor, stock, plant and machinery recorded in revaluation account. Okay. Now adjustment number D, land and building value is 80,000. 60,000 उसकी ओल्ड वैल्यू थी, अब कितनी है? 80,000. सो इट्स कॉल्ड एन एप्रिसिएशन वैल्यू जो हमारा प्रॉफिट है. सो अगेन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000 to revaluation account 20,000. Being increase in the value of land and building recorded in the revaluation account. सारे एडजस्टमेंट अब हो गए. अब हमें देखना है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है या लॉस आया है. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे लास्ट में शो किया गया है वर्किंग नोट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू RDD 2,600 because RDD is created. Stock 8,000, स्टॉक की वैल्यू कम हुई. प्लांट एंड मशीनरी 14,000
प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी 20% से कम हो गई। नाउ ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिसिएट हुई। सो नाउ वी डू अ टोटल ऑन डेबिट साइड, द टोटल इज 24,600, सेम टोटल ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड 24,600। आउट ऑफ 24,600 वी डिडक्ट 20,000, राइट। सो अमाउंट कितना बचा 4,600, इट्स आर लॉस एंड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो on revaluation account credit side we write by Sujata capital account 2,300, by Purnima capital account 2,300, in bracket we write revaluation loss। अभी हमें लॉस ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अब उसकी हम एंट्री पास करेंगे। अगेन कम टू जनरल, लास्ट एंट्री विल बी लाइक सुजाता कैपिटल अकाउंट 2,300, अपर्णा कैपिटल अकाउंट 2,300 to revaluation account 4,600, being loss on the revaluation transferred to partners capital account, being loss on the revaluation transferred to partners capital account। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे जनरल हो गया और एक वर्किंग नोट हो गई रिवैल्यूएशन की। नाउ वी सी द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अभी हम देखेंगे न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद वाली बैलेंस शीट। फर्स्ट हेडिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 April 2018। फर्स्ट लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स आउटर कॉलम 34,000, बिल्स पेबल आउटर कॉलम 26,000, कैपिटल्स अंडरलाइन सुजाता इनर कॉलम 1,17,700, Purnima 1,57,700, Aparna 1 lakh। Clear? Now come to asset side, cash in hand 2,20,000, sundry debtors, there is an adjustment on debtor, so you write in inner column 26,000 less provision 2,600, so outer column 23,400. Next stock, inner column 40,000 less depreciation 8,000, so outer column 32,000. Next furniture, outer column 24,000. Next land and building, there is an adjustment, so inner column 60,000, add appreciation 20,000, so outer column 80,000. Next plant and machinery 70,000, that is an adjustment on plant and machinery, so we write in inner column 70,000 less depreciation, inner column 14,000, so outer column 56,000. Now all the adjustment have been done and all the entries have been passed, and last our balance sheet has been tallied, and the tally amount is 4,35,400, 4,35,400. Now listen students, अभी आप सोचेंगे कैश का अमाउंट 2,20,000 कहाँ से आया। सो लिसन, वहाँ पे भी देखो लास्ट में वर्किंग नोट दी हुई है। ओल्ड बैलेंस जो कैश का शो किया गया था कितना था 80,000 प्लस 1,40,000। अब ये 1,40,000 कहाँ से आया, जो न्यू पार्टनर एडमिट हुई उसने 1 लाख एज अ शेयर ऑफ कैपिटल आई एंड 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, सो 80 प्लस 1,40,000, सो अमाउंट इज 2,20,000। नेक्स्ट कैपिटल के अंदर सुजाता का अमाउंट 1,17,700 एंड पूर्णिमा का 1,57,700 कहाँ से हुआ, राइट। इसका भी आंसर है, देखो ओपनिंग बैलेंस में सुजाता का अमाउंट कितना था 1 लाख, राइट। उसके बाद उसने 20,000 गुडविल के शेयर ली, सो हर अमाउंट इज़ 1,20,000 लेस जो उनको लॉस हुआ 2,300, सो 1,20,000 माइनस 2,300, सो 1,17,700। सेम एज पूर्णिमा का 1,40,000 इज एक्चुअल कैपिटल वैल्यू, एड 20,000 शेयर ऑफ गुडविल, सो 1,40,000 प्लस 20 1,60,000 लेस 2,300 on as a loss on revaluation, so 1,60,000 minus 2,300, so 1,57,700। क्लियर है। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन जो बहुत इजी था, और यही सेम वे से आपको सारे क्वेश्चंस जो जनरल एंट्रीज पे डिपेंड होते हैं वो सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।
अस्सलामु अलैकुम।